آج جو ہمارے درس کا موضوع ہے، جس میں ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ مختلف الحدیث کیا ہوتا ہے اور اس کی شکلیں کیسی ہوتی ہے۔ تو مختلف حدیث کے بارے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ جب ہمارے پاس دو ایسی حدیثیں ہو، دونوں کی دونوں مقبول ہو، تو ان میں جمع کرنے کے، ان کا تعارض ختم کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تعارض جو ہے، تعارض کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی تعارض اور دوسرا ہوتا ہے ظاہری تعارض۔ جہاں تک حقیقی تعارض کا تعلق ہے، یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ کتاب و سنت میں حقیقی تعارض ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہیں کہ ایسی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی۔ حقیقی تعارض قرآن میں کیوں نہیں ہو سکتا، حقیقی تعارض حدیث میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات جو ہے، جو ظاہری تعارض جس کو ہم بولتے ہیں کہ حقیقی تعارض نہیں ہو سکتا، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بھی بات بیان نہیں فرماتے، اپنی خواہش سے کوئی بھی بات بیان نہیں فرماتے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، سوائے جس کی وحی اللہ تعالیٰ ان کی طرف کرے۔ اب ہمیں سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے، یہ حدیث جو ہے، یہ وحی کی ایک قسم ہے جس کو وحی غیر مطلوب بولتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جب ہمارے پاس حدیث ثابت ہو گئی، یا تو حدیث صحیح ہوگی یا حسن ہوگی، یعنی مقبول حدیث ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان حدیثوں میں حقیقی تعارض پایا جاتا ہو۔ جس طرح اللہ تبارک اپنے کلام کے بارے میں فرماتے ہیں، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کلام، اگر یہ وحی اللہ کے بغیر کسی اور کی طرف سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ لوگ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے۔ اسی طریقے سے اختلاف کیوں ہوتا ہے، تعارض کیوں ہوتا ہے؟ کبھی بندہ ایک بات بولتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ جب بات کرتا ہے تو اور کوئی الفاظ کے ساتھ وہ بات بولتا ہے۔ مگر چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں وحی جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، جو آپ کے رب ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں۔ یعنی تعارض کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ ایک بار بات کرے، پھر دوبارہ دوسری بات کرے تو وہ بھول جاتا ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن ثم ان علینا بیانہ، جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ جو ثم ان علینا بیانہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو وحی اللہ نے نازل کی ہے اس کو واضح کیا ہے۔ اب اگر اسی بات کو ہم سمجھے کہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی تعارض اور دوسرا جو ہے وہ ہے ظاہری تعارض۔ تو حقیقی تعارض تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام جو آپ کے سامنے میں نے آیتیں رکھی، یہ پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ایسی بات سمجھتا ہو کہ حقیقی تعارض حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے، تو یہ جو ہے یہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ اس عقیدے کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جب پھر اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان بھی اور ایک عقیدہ بھی رکھتا ہوں کہ قرآن میں آپس میں یا حدیث کے دو مقبول احادیثوں میں تعارض ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ جو ہے ان کے زبان سے یا اس کی زبان سے جو ہے کلمہ کفر نکلتا ہے۔
اور ये कुफ्रिया कलाम है, या अगर वो समझता है तो उसका अकीदा जो है वो कुफ्रिया है, जिस एतबार से, चाहे कौली हो चाहे फैली हो या चाहे एतिकादी हो, उसके दिल में ये शुबा हो जाए। अब जिस तारुज़ की हम बात करते हैं, जिसकी यहाँ पर सुम्मल मकबूल इन सलिम मिन मुआरज़ति फहुवल मुहकम व इन उरिज़ बिमिस्लिही फ़इन अमकन अल जमु फहुव मुख्तलिफ हदीस। तो जिस हदीस की बात ये कर रहे हैं, जिस तारुज़ की बात शेख साहब कर रहे हैं, उस तारुज़ का ताल्लुक जो है, उस तारुज़ का ताल्लुक उस चीज़ के साथ है जिसको हम यहाँ बयान करना चाहते हैं। उसको बोलते हैं ज़ाहिरी तारुज़, यानी हकीकी तारुज़ आपको कभी नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरी किस्म जो है जिसको हम बोलते हैं दूसरा तारुज़, ज़ाहिरी तारुज़, वो हदीसों में पाया जाता है और उसी की यहाँ पर, उस तारुज़ की यहाँ पर बात होती है। अब हमारे पास आते हैं कि तारुज़ को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। मैंने कहा था कि तारुज़ पे मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर दिया है, इसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया इससे पहले वाले लेक्चर में, वो इंशाल्लाह आज अपलोड करेंगे। तो उस वक्त मैंने ये बात भी कही थी कि दूसरा लेक्चर जो होगा वो तारुज़ के बारे में होगा, क्योंकि तारुज़ जो है अक्सर मुनकिरीन हदीस इस दरवाजे से हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया तो फिर ये फरमाया, तो आप हमें बताइए कि ये हदीस सही है या ये हदीस सही है, यहाँ क्या फरमाया गया तो यहाँ क्या फरमाया गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें तारुज़ को समझना है, इसके जो ज़वाबित हैं, इसके जो असबाब होते हैं, इसके जो तरीक़ेकार हैं वो समझने हैं। हमारे पास तारुज़ के लिए 3 चीज़ें होती हैं कि तारुज़ इस तरीके से जो है ख़त्म किया जाए, रफ़ा किया जाए, दूर किया जाए, या जिसको हम बोलते हैं दफ़ा किया जाए, यानी तारुज़ को किस तरह ख़त्म किया जाए। तो हमारे पास, मैंने इससे पहले ही बोला था, हमारे पास एक है जमा, जिसको हम तौफ़ीक़ व तत्बीब भी बोलते हैं या जमा बोलते हैं। फ़इन अमकनल जमा, यानी दोनों से को जमा करना। एक चीज़ होती है नासिख और मनसूख, और तीसरी चीज़ होती है तरजीह। मगर मुहद्दिसीन के बारे में इसमें 3 तबके हैं जो इसको अलग-अलग करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम खोलते हैं तो एक तबका कहता है सबसे पहले क्या किया जाए, जिसमें शेख अब्दुल वहाब खल्लाफ है, वो कहते हैं पहले इसको समझना, पहले जमा किया जाएगा, फिर तरजीह दी जाएगी, फिर नस्ख होगा। ये काम तो यही 3 है, मगर इनको ऑर्डर किस तरह देना है, यानी पहले हमें जमा करना है या नासिक मंसूख ढूंढना है या तरजीह देनी है, उसको बयान करते हैं जो शेख अब्दुल वहाब खल्लाफ है। वो फरमाते हैं कि पहला क्या किया जाएगा, पहले दोनों हिस्सों को जमा किया जाएगा जिनमें तारुज़ है, अगर मुमकिन नहीं है फिर तरजीह दी जाएगी, और अगर तरजीह मुमकिन नहीं है फिर नस्ख किया जाएगा, यानी फिर नासिक और मनसूख ढूंढा जाएगा। दूसरा कौल है पहले नासिक मनसूख को ढूंढा जाएगा, फिर तरजीह को ढूंढा जाएगा, और फिर तौफीक को ढूंढा जाएगा। और ये कायदा है, ये अक्सर जो फुकाया अहनाफ हैं उनके यहाँ ये कायदा राइज, नस्ख पहले हम नासिक और मनसूख ढूंढेंगे, फिर तरजीह ढूंढ, फिर तौफीक ढूंढेंगे, यानी फिर जमा ढूंढेंगे, यानी पहले नस्ख, फिर तरजीह यानी प्रेफरेंस, फिर तौफीक, फिर जमा। मगर तीसरा जो कौल है और जिसको जमहूर मुहद्दिसीन ने नकल किया है, उनके यहाँ क्या कौल है, वो यही है जो शेख इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह का है, वो है फ़इन अमकनल जमउ, सबसे पहले जमा करेंगे, यानी अगर ये पॉसिबल है कि 2 हदीसों को जमा किया जाए तो जमा करेंगे, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है फिर नस्ख करेंगे, नासिक ढूंढेंगे, मनसूख ढूंढेंगे, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है फिर तरजीह ढूंढेंगे। यानी मुहद्दिसीन के यहाँ तो इत्तिफाक है कि इन चीज़ों पर, जमा पर, नासिक मनसूख पर और तरजीह पर। चौथा है तवक्कुफ, तवक्कुफ तो अलग चीज़ है, वो तो करना ही, जब कुछ भी हासिल ना हो जाए तवक्कुफ, तवक्कुफ तो यहाँ सबके यहाँ चौथी कैटेगरी है। मगर जो बाकी 3 है उनमें तकदीम व ताखीर है, कोई आगे ला कोई पीछे करता है, और इसमें जो जमहूर मुहद्दिसीन का जो मौक़िफ़ यही है
کہ जब आपके पास दो हदीसें लाई जाए तो सबसे पहले आप उनमें देखेंगे कि राज जो ये है जमा करने की तरीके क्या, हम इन दोनों पर अमल किस तरह कर सकते हैं, दोनों पर एक साथ बेहतरीन काम है। दूसरा है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप ढूंढेंगे क्या इनमें कोई नासिख और मनसूख तो नहीं है, वो गई दूसरी चीज। और तीसरी चीज कि आप इनमें तरजीह ढूंढेंगे जिनके बारे में आइमा फरमाते हैं कि तौफीक के लिए हमारे पास जो है कितने कायदे हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा कायदे हैं, 50 ज़्यादा वजूहात हैं जिनकी वजह से हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ पर तरजीह देते हैं। ये 3 कौल थे जो मैंने आपके सामने मुहद्दिसीन के रखे कि किस तरह से जमा किया जाएगा, किस तरह से ये जो है ये है। अब जो हमारे पास पहली चीज जो है वो जमा, जिसको हम बोलते हैं फ़इन अमकनल जमउ, इसका और एक नाम है तौफीक या इसका और एक नाम है तत्बीक। इन्हें इसको हम बहुत सारे तरीकों से बोल सकते हैं। कभी हम इसको बोलते हैं जमा, कभी बोलते हैं इन्हें रफ तारुज, तारुज को दूर करना, कभी हम बोलते हैं तौफीक इसको, कभी हम बोलते हैं इसको तत्बीक। ये दोनों हदीसों की तत्बीक क्या है। तत्बीक जमा जो है, पहला तरीका क्या है, पहला यही है कि हम हदीसों को जो है दोनों हदीसों को जमा करेंगे। इसमें पहला मर्तबा जो है वो ये है कि हम लफ्ज की रियायत करेंगे। आप जो है इस दरस को जो है गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार दरस है। इसको समझने के लिए जो है आपने पूरे ध्यान से इसको सुनना है कि किन वजूहात पर हम हमारे पास कुछ शक्ल कि लफ्ज की रियायत करते हुए हम जो है जमा कर सके। मिसाल के तौर पर लफ्ज की रियायत क्या है, मतलब हम मिसाल के तौर पर देखते हैं कि हम कोई एक लफ्ज देखेंगे। मिसाल तौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें एक हुक्म है फीमा सकत समा वल उयून औ अशरन या अशर फीमा सकव बिनुज़ह निस्फुल अशर, कि नबी बुखारी रहमतुल्लाह ने ये हदीस जो है बुखारी में नकल किया है और हदीस नंबर है 1483। क्या फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जिस चीज को आसमान और सैराब करती हो, नेचुरल इरिगेशन सिस्टम है, उसको आपको 10% दे परसेंट उशर हो गया 10%। और जिसको खुद सिंचाई करनी है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इरिगेशन, जिसको खुद से करना पड़ता है, उसका है निस्फुल उशर हो गया 5%। यानी कुछ चीजों पर हमें जो है ज़कात देनी है, वो कितनी है, जिसको हम उशर बोलते हैं, असल में ज़कात की एक किस्म है जो जमीन से पैदावार निकले, 10% या 5%। फर्क क्या है, अगर नेचुरल इरिगेशन सिस्टम है तो 10% है, और अगर मतलब ह्यूमन एफर्ट है उसमें, जिसको हम बोलते हैं पानी चढ़ाना पड़ता है, जिस तरीके से भी हो, इसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, तो उसको जब हम खुद से करें मेहनत करके, क्योंकि कभी कभार आर्टिफिशियल में नेचुरल बने, उस वक्त उसी हुक्म में आ जाएगी। मिसाल तौर पर अब गवर्नमेंट ने जो है नहरें खोदी है, तो अब वो तो फिर नेचुरली आ जाए, क्योंकि नहर का जिक्र यहाँ पर है उयून, या जो उयून तरीके से है, तो वो उस वक्त डिस्कस किया। शार्ट में ये है कि जिसकी सिंचाई से करनी पड़े उस पर 5% है, और जो नेचुरली इरिगेट हो रहा हो उस पर जो है वो 10% उशर है। अब अगर हम देखेंगे तो ये हदीस आम है मुतलक हदीस, इसलिए पहली शर्त जो होती है वो हमें लफ्ज पे रियायत करनी होती है। लफ्ज हुक्म क्या है, खास क्या है, आम क्या है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 अवसर, ये भी सही बुखारी की हदीस है और हदीस नंबर है 14, कि नबी करीम ने फरमाया जो खमसा अवसर से कम हो बात नहीं है। तो अगर देखा जाए तो बज़ाहिर इनमें तारुज है। पहले हदीस में कहा गया कि उशर देना ही देना है, चाहे कम हो, मुतलक है, मुतलक हदीस। और दूसरी हदीस को जब हम देखते हैं वो ये है कि 5 औसक से कम। इसमें उलमा ने बहुत सारी बहसें की हैं कि 5 औसक कितने हैं, कुछ कहते हैं नहीं 7 7.5 क्विंटल है, और कुछ ये है 6 क्विंटल 53 kg, यानी 6.5 क्विंटल। तो अलग अलग मतलब जो है
वसत जो है उसको डिफाइन किया उलमा, अगर उसके लिए अलग बहस है, हमारी बहस इस वक्त उसके साथ नहीं है। अगर इल्म हदीस में वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो बहस करेंगे। तो यहाँ हमारा मसला है कि यहाँ पर एक हदीस में मुतलक जो भी 10% या जो भी उस तरह तो 5%, मगर यहाँ पे बयान किया जो 5 औसत से कम हो उस पर कोई ज़कात नहीं है। तो यहाँ करेंगे, इन दोनों हदीसें बुखारी की है, और अगर आपके पास कोई वहां तो मुतलक है कि देना, आप कहोगे वो खास है ये आम है। जो दूसरा वाला हुक्म है वो खास हुक्म है और वो पहला वाला आम है। अब खास से आम की जो है तखसीस की जाएगी, यानी जब ने फरमाया कि आपको ज़कात इस तरह देनी है तो उस वक्त कैद। दूसरी जो है इसका मतलब ये है कि ज़कात देनी हमें 10 और 5, पहले ये देखना है कि 5 औसक अगर नहीं है तो इसी तरीके से इन दो हदीसों को अलग अलग करेंगे और इन दो हदीसों को हम समझेंगे कि लफ्ज की रियायत वो जनरल है, यानी वो आम है, और दूसरा जो है वो खास है। इसकी रियायत करने से हमने हदीसों में जो है तत्वीक की कि अब हमें यह हदीसें समझ आ गई कि तो तारुस था इनमें कि वहां तो कहते हैं कि जब भी जितना आपके पास निकले तो नहीं देनी है, यहाँ नहीं, जो 5 औसक से कम हो उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे हालात की रियायत, यानी कोई हालत है, हालत कोई कंडीशन है, उस कंडीशन की रियायत को देखकर हम जमा करेंगे। इसकी मिसाल इस तरह है, शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है, नंबर है 2387। अबू दाऊद की हदीस है, सुनन अबू दाऊद की 387 कि एक शख्स नबी के पास आया तो उन्होंने कहा मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जो हूं मैं रोजे की हालत में अपने बीवी से जो है उसको बोसा दे सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है इजाजत, और दूसरा शख्स आ गया तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब हम कहेंगे कि क्या ये जायज है या नाजायज है। तो हम कैसे समझ सकते हैं इस हदीस को कि टकरा कि एक बंदे के लिए एक शरीयत और दूसरे बंदे के लिए दूसरी शरीयत। एक बंदा आया तो उसको नबी ने फरमाया हाँ आप कर सकते हो, अपनी मतलब रोजे की हालत दे सकते हो आप, और दूसरे से नबी ने फरमाया आप नहीं, क्या है। तो जब हम इस हदीस को देखते हैं तो इसके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं, चाहे इब्न हिब्बान हो या इब्न हदीस जो मकबूल है, वो फरमाते हैं कि जिस शख्स को रुखसत दी गई थी वो बुजुर्ग थे, फल्लजी रुखसत लहु शेख नहाहु शाब, यानी जिस शख्स को रुखसत दी गई थी वो बुजुर्ग आदमी, और यानी बुजुर्ग आदमी जो है उस उतनी गालिब नहीं आती, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाजत दे, रोजे की हालत में जो है आप अपने बीवी को जो है बोसा दे सकते हो। पर जिस बंदे को नबी ने मना फरमाया वो शख्स वो थे जो जवान थे, और इसीलिए आप अलैहि वसल्लम ने उनसे मना किया। इसीलिए देखोगे मोता में इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस तरीके से किया है कि जो जवान है उसको इजाजत नहीं है, यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहे कि अगर बंदे को ये खदशा भी, इसमें कुछ उलमा ने इस तरह बयान किया, अगर उसको लगे मतलब कंट्रोल नहीं है तो उसको बोसा नहीं करना चाहिए, और अगर लगे कि कंट्रोल, मगर जो वहां पर हदीस जो है जिसकी मैंने यहाँ पर अल्फाज बता दी, मैंने ये कहा था कि वो बुजुर्ग और नौजवान के बारे में था। अब ये हाल, यहां से हमने हालत देखी, किस हालत में, यानी बंदिश को ये काम करना उसकी हालत क्या है, वो जवान है या वो है। अगर वो जवान है तो नहीं, अगर वो बूढ़ा है तो उसके लिए हाँ है। से भी हमने इन दोनों हदीसों को जमा किया और इन हदीसों का जो है तारुज खत्म हो गया। अब तीन
तीसरी शक्ल है जमाना और वक्त के एतबार, सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैं जो तारुज़ को इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में कायदे रहे कि किस तरीके से कर सकते हैं। हम इस वक़्त हदीस नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसूल हदीस पढ़ रहे हैं, और असूल हदीस कि जब हमारे पास ऐसे मसाइल आ जाए तो हमें पता चले कि इन्हें किन उसूलों की बुनियाद पर इन चीज़ों को जो है तौफीक दी, तत्वीक दी है, जमा किया है, या नासिक मनसूख किस बुनियाद पर उन्होंने कहा, क्या वजह नासिक मनसूख आ गए, क्या वजह थी कि किसी हदीस को दूसरे हदीस पर तरजीह दी गई, उसकी कुल मिला के जो ये सारा इसीलिए है कि ताकि हम हदीसों में जो है मकबूल हदीसों में, मकबूल और मरदूद में तारुज़ कभी नहीं होगा, वो मरदूद और मरदूद हमसे बात करते हैं मकबूल हदीसों के दरमियान, और उसके हमने तीन का, तीसरा जो है वो ये है कि किस शक्ल में हो सकता है, कि इसकी जो है मैंने इस पर बात की है, इन्हें जमाने के एतबार से इसको अल वाज़िह फी उसूल फ़िक़्ह में एग्जाम्पल को, कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया क्या हम किताल कर सकते हैं, उनको इजाजत दी, और दूसरी को करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मना किया, मगर इसका मकान के साथ ताल्लुक है। जो लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताल को जायज कहा था कि आप लड़ सकते हो, आप लड़ाई जो है आपको पता है किताल इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में किस तरह इस्तेमाल है, तो किताल के लिए उन्होंने तो आपसे उनको इजाजत दे दी, दूसरों को नहीं दी। दूसरे लोग आए थे, वो आए थे हुर्मत वाले महीनों में, और हुर्मत वाले महीने 4 होते हैं, अगर देखा जाए 3 मतलब यानी जिल ज़िलक़ादा, जिल मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने जो है ये हुर्मत का ज़िक्र अल्लाह ताला ने हमें है कि इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़े जो हराम की है। तो इसलिए जिनको इजाज़त थी वो अलग महीनों में आए थे, और जिनको इजाज़त नहीं मिली थी वो अलग। तो इस एतबार से, ज़माने के एतबार से हमने दोनों हदीसों को तत्बीक, वरना आपको क्या था एक ही हदीस में दोनों चीज़ें हैं, कि कुछ लोगों को इजाज़त दे दी, कुछ लोगों को दे दी, तो क्या वजह है? तो आपको ढूँढना है, क्या कहीं तो महीने का मसला तो नहीं है? क्या हालात का मसला तो नहीं है? क्या और कोई मसला तो नहीं है? तो रिवायतों में जो है, एक को हम वक़्त के एतबार से कम होगी, तो एक को हम ख़ास के साथ यानी इन 4 महीनों के साथ जो है, इसलिए नबी किस ने मना फरमाया। बाकी जो उनमें आए थे, तो उन्होंने नबी किस्म ने ऐसा कोई बात नहीं की। चौ जो है, यानी चौथी शक्ल जो है, चौथी सिफ़त के एतबार से और मकाम के एतबार से, यानी मकाम के एतबार से भी, और कभी-कभार जो है एतबार से हम हदीसों को जो है तत्वीक दे सकते हैं शक्ल के ज़रिए से। यानी कोई चीज़ को हम एक सकते हैं और दूसरे को दूसरे के साथ। हाँ, कसम की एक हदीस है, जिस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी में हदीस नंबर 580 और 582, इसी तरह ये सही मुस्लिम में, और इसी तरीके से और एक हदीस बुखारी ने हदीस नंबर 23 ने 2322, और ये हदीस है सही मुस्लिम में भी है। ये तारुज क्या है कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया को पाले, इन्हें एक तो वो जो पता ही आपको, जिसको हम कहते हैं सुधाया हुआ कुत्ता, इन्हें किसी घर से जो कुत्ता पाले इन्हें के लिए, या जिसको ट्रेनिंग के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए जो किसी काम के लिए हो, उसमें इजाज़त है।
मगर जो आम तरीके से जिस तरह आज लोगों का पालना, उनके यहाँ हर दिन फरमाया, उनके यहाँ हर दिन, जो बुखारी की हदीस है 580, उनके यहाँ नक़स मिन अजरिही कुल्ल यौमिन क़ीरातान। क़ीरात, क़ीरात जो है ये एक, क्या कहते हैं इसको, मीट मेजरमेंट का एक ज़रिया था थे। तो नबी करीम ने फरमाया 2 क़ीरात जो है उस जो है हर रोज़ उसके अमाल से कम किए जाते। और यही जो है, यही हदीस, दूसरी हदीस जो है बुखारी की हदीस है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत किया, यानी जिसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया 2322 हदीस नंबर में, उसमें है नक़स मिन अजरिही कुल्ल यौमिन क़ीरात, यानी एक क़ीरात। अब इख्तिलाफ तो हो गया ना, तारुफ हो गया ना, कि एक हदीस में एक क़ीरात की बात चल रही है, दूसरे में दूसरे की चल रही है, यानी एक में एक क़ीरात की बात और दूसरे हदीस में एक क़ीरात की बात, यानी इसमें जो है। तो इस पर जो मुहद्दिसीन ने कहा है, ये अलग अलग जगहों के एतबार से, यानी मकाम के एतबार से, यानी अगर बंदा हरम में, ने कहा ना मकाम के एतबार, सिफत के एतबार से, अगर हरम में या पालता है, यानी यहाँ पर जो हरम है हरमाइन, अगर इधर पालता है 2 क़ीरात जो है नुक़स होंगे। और यानी जब तो उनका उसका जो ताल्लुक था वो 2 क़ीरात का ताल्लुक किसके साथ, यानी हरम के अंदर, ये गुनाह डबल हो जाता है, क्योंकि कोई गुनाह डबल उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, अगर वो दूसरी जगह करे तो उसका कम हो जाए। मिसाल, इस्लाम ने ये कहा कि ज़िना जो है ये गुनाह है, ये मुतलकन हराम है, और इस पर जो है अल्लाह ताला ने सज़ा भी मुकर्रर करके रखी है। जो अगर शादीशुदा हो तो उसको संसार करना है, वरना अगर अनमैरिड है। मगर अगर यही गुनाह बंदा, जिस तरह नबी के सामने कबाया जब गिनाए, तो उनमें ये गुनाह भी गिनाया कि इंसान अपने पड़ोसन के साथ नाजायज करे, ये भी गुनाह है, उससे ज्यादा गुनाह है। इसी तरह कभी कभार अमल होता है, क्योंकि जब पड़ोसन के साथ कर लेगा ये गुनाह, तो उसका मतलब ये है कि ज्यादा चांसेस इसको, ये जो है उनके शवहर जो है वो घर से बाहर गए हैं, तो इसलिए इस पर अलग से जो है ज्यादा इस पर इसकी मजम्मत बयान की। या इसी तरह में भी, अच्छाई में भी चीज़ों का वज़न बढ़ता है। अगर आप किसी रिश्तेदार को चीज़ देते हो तो इसमें अजर है। अगर यही चीज़ आप एक रिश्तेदार को जो आपका हमसाया है, तो यहाँ पर भी मुहद्दिसीन ने इस चीज़ को इस पर जो है महमूल, कि जो हरम में है तो वो 2 क़ीरात, जो हरम से बाहर है, देहात में है, तो उसके लिए 1 क़ीरात का जो है सज़ा है। या कुछ लोगों ने शहर का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, यानी शहर और देहात में, उसका क्या फ़र्क है? शहर में रखता है तो मुमकिन है कि वो ज़्यादा लोगों को डराएगा, क्योंकि शहर में जितने लोगों की आमद-रफ़्त होती है, उससे ज़्यादा लोग जो है डरेंगे। उसके बरक अगर देहात में, तो वहाँ कोई कभी-कभार जाता है, तो वहाँ उससे भी जो है, तो कुछ लोगों ने इस तरह से जो है, जो मैं चौथी शक्ल बता रहा हूँ, वो मकाम और सिफ़त के एतबार से है। तो ये चीज़ जो है, ये हमने समझा है। पास तारुज़ ख़त्म करने के तरीके हैं, शक्लें हैं, तो मैंने 4 मरातिब जमा किए थे। पहला लफ्ज़ को रियायत करके, एक को ख़ास, एक को आम का मसला था। 5 वक़्त यानी ज़कात इस तरह देनी है, और 5। और दूसरी बात जो मैंने बयान की, मैं रिकैपिटुलेट कर रहा हूँ, कि हालात के एतबार से की इजाज़त, मतलब बोसा देने की सियाम में, और दूसरे को नहीं दी, कि वो जवान था, जिसको दी थी वो शेख था, बुज़ुर्ग था, नहीं दी। तो यहाँ लफ्ज़ की हालात की रियायत की गई। रियायत की गई, यानी किसी कौम को लड़ने की इजाज़त दे दी और दूसरे कौम को नहीं दे दी, तो उसमें भी मसला ये था कि जिनको इजाज़त दे दी और किसी कौम से थे, यानी वो जो थे, वो लोग कौन थे? वो जिन महीनों में बात करते थे, वो जो है हुर्मत वाले थे, और जिनको मना किया गया, वो हुर्मत वाले महीनों की बात कर रहे थे, और हुर्मत वाले महीने 4 ज़ि ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, और चौथी चीज़ जो है
मकाम और सिफत की रियायत करनी जो है कुत्ते की मिसाल। और इस कुत्ते की मिसाल भी है कि लोग कहते हैं अगर कुत्ता, ये भी एक जो है तारीम में बेहतरीन इब्न हजर अस्कलानी ने जो है एक और एक की है कि किस वजह से नबी कृष्ण ने फरमाया दो के और कभी एक के रात। फरमाते जो जारी कुत्ता होगा, जारी में एरर पहुंचे, जारी जात से, उसके जो है उसकी वजह से दो के रात का खतरा रहता है। तो जारी कुत्ता ना हो, यानी गैर जारी हो, चाहता हो उससे एक के रात। तो मुझे भी ये बेहतरीन जो है का जो ये कौल है कि इसमें जारी और गैर जारी, यानी भौंकता है, बाघ किसी के पीछे भागता है तो उसका अजर, उसका जो है उसके अजर में से जो ऐसा कुत्ता पाले तो उसके दिन दो की रात जो खत्म किए जाते हैं, उसके अमाल में से दो की रातों का। अगर गैर जारी है तब भी एक। तो ये चीज जो है, तो ये चीज जो है ये सम, तो ये कुल चीज जो है आपके सामने मैंने चार रखी कि ये भी, इसके बगैर भी बहुत सारे तरीके हैं। इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह और मौका मिले, क्योंकि अब हम आगे ये किताब पढ़नी भी है, तो इंशाल्लाह इस इंशाल्लाह मुझे, मैंने आपसे कहा था कि इस पर एक दो बाजार में एक तो जो है किताब जो मैंने आपसे बयान की थी वो भी है, जिसका स्कोरी साहब ने जो है उसका तर्जमा किया उर्दू में, और उसमें से, और इसी तरीके से उन्होंने और एक किताब लिखी है, उसका नाम है रहबर तौफीक हदीस। यानी इसमें नासिक मनसूख के या मुख्तलिफ हदीस या तारुज़ को ख़त्म करने के लिए वो भी एक बेहतरीन किताब, वो भी इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं। और अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी चाहा तो उन पे और के लिए इतना ही। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई सवाल है तो आप